Good evening, everyone. Am I audible to all? Yes, ma'am, Okay, you're good on. evening. Wonderful. Very nice. Yes, May I good request evening. everyone to please switch on your cameras so that we can have a better connect? Perfect. Very nice. So it is so good to, see everyone and then talk. Otherwise, it's like, um, if I will not see you with your expressions, maybe I'll just keep on talking on my way, and there will be either a miscommunication or there will be, lack of understanding of things. So it is good to see and communicate at the face value. Yes, Manindra, you have a question? You are on mute. Wait. Can I just have 15 minutes? It's my dinner time, so can I just mute my video for Uh, 15 minutes? yeah. You want to switch off your cameras because of that? This is Yeah, what you're ma'am. telling me? Yeah, perfectly Yeah. fine. Yeah. Otherwise, in case you are having dinner, it is okay. Otherwise, if you can switch on your cameras, please go ahead. So only Resham and Lakshmikant. Thank you so much. You're most welcome. I definitely understand face to face is so important. Exactly. Hello, Deepalji, how are you? Okay, so shall we start? People will keep on joining in and we will start with that. First of all, I would like to introduce you straight away to the topics that we are going to cover, right? And after that, I will come to the content, the topic of the day. Is that fine? Okay, so I'll just share my screen. I hope my screen is visible to everyone. I'll explain this to you. Okay. See, we are now the webinar that we are conducting today, it is for the postgraduate program in Tarot, right? So it has two levels. That means it has diploma and PG, right? In total, you will get 12 modules over here. And these 12 modules, the bifurcation of the modules is on your screen. First, we actually start from the very scratch because we have students who are absolutely freshers, and then we have certain students who have little knowledge of tarot. So we start from the scratch. मेजर आर्काना के बारे में I'll use दोनों लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, सो दैट इट इज कंफर्टेबल फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड. तो हमारे जो मॉड्यूल्स हैं टोटल 12 मॉड्यूल मिलेंगे. बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम टैरो की हिस्ट्री से लेके टैरो की बाइफिकेशन और टैरो कार्ड रीडिंग कैसे की जाती है, कार्ड के मीनिंग कैसे पढ़े जाते हैं, वो हम सारा अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. तो मॉड्यूल 1 में आप देखेंगे कि हमने सारा मेजर आर्काना कवर किया है. मॉड्यूल 2 में हम माइनर आर्काना एंड मॉड्यूल 3 में भी हम माइनर आर्काना जिसके अंदर हम पेंटिकल्स एंड स्वॉर्ड्स को कवर करेंगे. मॉड्यूल नंबर 4 में वी टॉक अबाउट स्प्रेड्स कि टैरो को लेआउट कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करके आपको टैरो को पोजीशन करके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. मॉड्यूल नंबर 5 में हम जानेंगे क्रिस्टल्स के बारे में because crystals and tarot एक ऐसा combination है which goes like hand in hand. As a remedy you can give to your clients. आप crystals उनके problem statement पे suggest कर सकते हैं. साथ ही साथ आप crystals as a tarot reader you can use it for your benefit. आप खुद को negative energy से कैसे protect करना है, कौन से crystals हैं, किस crystal का क्या benefit होता है, ये सब कुछ हम मॉड्यूल नंबर 5 में अंडरस्टैंड करते हैं. मॉड्यूल 6 बात करता है एज अ टैरो रीडर आपको किस तरह से अपने एट्रीब्यूट्स पे काम करना है. क्या पहले तो वो एट्रीब्यूट्स होते क्या है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हम कैसे अपनी एनर्जी का फ्लो पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे अपनी एनर्जी को हम एनहांस कर सकते हैं ताकि हम बेटर तरीके से टैरो रीडिंग कर पाए. वी ऑल्सो लर्न अबाउट चक्रास हियर कि हम किस तरह से अपने चक्रास पे काम करके अपनी एनर्जी को हम यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन कर सकते हैं. ऑरा क्या होता है, चक्रास क्या होते हैं, क्या
क्या तरीके से हम इनके ब्लॉकेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं, सारा हम पहले 6 मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। देन वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल, जिसमें हम मॉड्यूल नंबर 7 में हम कुछ एडिशनल मोडालिटीज के बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज ये एडिशनल मोडालिटीज आपको अपने आप को एज अ रीडर, एज अ हीलर एक्सपैंड करने में हेल्प करेगी। तो हम ट्राइग्राम्स के बारे में जानेंगे, हेक्साग्राम्स के बारे में जानेंगे। ये भी एक तरह से आपकी मोडालिटी है पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करने की। हम डाउजिंग सीखेंगे, पेंडुलम डाउजिंग। डाउजिंग होती क्या है, एडवांस लेवल्स क्या है डाउजिंग के, क्या क्या तरीकों से, किस किस तरीके के डाउजर्स अवेलेबल हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारा प्रोसेस हम मॉड्यूल नंबर 10 एंड 11 में सीखेंगे। उसके बाद थोड़ा चक्रास, मेडिटेशन, शेप्स एंड कलर थेरेपी के बारे में हम मॉड्यूल नंबर 12 में सीखेंगे। सो दिस इज अबाउट द कंटेंट जो हम आपका 12 मॉड्यूल में कवर करेंगे, एंड दिस प्रोग्राम इज नोन एज पीजी कोर्स इन टैरो। ठीक है, आई होप इतना सबको क्लियर हो गया है ना, क्लैरिटी आ गई, बिकॉज आई कैन नॉट सी यू, सो आई एम एज्यूमिंग दैट इट इज क्लियर, आप सबको समझ में आ गया ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टैरो के थ्रू हम गाइडेंस कैसे दे सकते हैं। बट उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप में कितने लोग हैं जो नए हैं, टैरो रीडिंग जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको नहीं पता। ओके, रेशम फाइन, लक्ष्मीकांत ओके, and rest everybody you can raise your Zoom hands in case you are also new to tarot. Okay, Dhruv Mishra is also new, Indra is also new, Shivam okay. Ma'am, actually, I have some experience. Uh-huh. Yeah. So can I speak or should I speak later? Like I'm eating right now. No, you please continue with your dinner. Yeah, thank तो you. बाकी के जो है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको कुछ नॉलेज है, आप कुछ जानते हैं, ठीक है। लेकिन टैरो में क्या है, टैरो इतना डीप है, इतना डिटेल्ड है, क्योंकि हम राइडर वेट डिस्कस करते हैं, हम राइडर वेट के ऊपर काम करते हैं। सो राइडर वेट अपने आप में एक पूरी पूरी किताब है, बहुत सारी डायमेंशंस है कार्ड्स को पढ़ने की, बहुत सारे तरीके हैं कार्ड्स को पढ़ने के, है ना। और हम सारे मीनिंग्स रिमेंबर तो कर नहीं सकते, याद तो कर नहीं सकते, तो क्या तरीका है, कैसे एसोसिएट करें अपने आप को कार्ड्स की एनर्जी से, कैसे हम कनेक्ट करें ताकि हमारी टैरो रीडिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल की हो। तो हम यहाँ पे जो हमारा पीजी प्रोग्राम कोर्स है उसमें हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। इवन इफ यू नो एनीबडी ऑफ यू जो ऑलरेडी टैरो जानते हैं, आपके लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को होगा, एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज। यहाँ से आप अलग ही कुछ लेके जाएंगे, ठीक है। सो अब आज का जो मैंने टॉपिक रखा है वो है कि टैरो से गाइडेंस कैसे दी जाती है ना। अभी हम सबको पता है कि टैरो एक बहुत अच्छा गाइडिंग टूल है ना। जो लोग इसको प्रिडिक्टिव कहते हैं, इट इज लिटिल रॉन्ग। प्रिडिक्शन क्या होती है, जब मेरी आदत बन जाती है कार्ड्स को इतना देखने के बाद, जब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ कि ये मेरा कार्ड यही चीज बता रहा है, तो वो प्रिडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, राइट, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि टू टू टूज आर 4, दिस इज नॉट इंट्यूशन, दिस इज व्हाट, इट इज अ प्रैक्टिस। ठीक है, तो सिमिलर आप कार्ड्स में इतने प्रोफिशिएंट हो जाते हैं कि कार्ड आपके सामने आते हैं और आपको पता है ओके कार्ड इज टेलिंग दिस, ठीक है। सो इट इज अ गाइडिंग टूल, ठीक है। लेकिन उस गाइडिंग टूल तक पहुंचने के लिए, हमको उस गाइडेंस तक पहुंचने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें करंट सिचुएशन पता हो। अगर मैं किसी को गाइडेंस दे रही हूं, किस बेसिस पे गाइडेंस दूंगी। कार्ड आपको डिफरेंट तरह के गाइडेंस देते हैं, एक कार्ड के हजारों मीनिंग है, हजारों तरह की गाइडेंस है, ठीक है। क्लाइंट ए को मैं उसी कार्ड से कुछ और गाइडेंस दूंगी, क्लाइंट बी को उसी कार्ड से कुछ और गाइडेंस दूंगी। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, देयर कंसर्न्स, राइट। तो जब हम कंसर्न्स जानेंगे तो ये एक स्टडी का पार्ट है, एक पैटर्न है, जिस तरह से आप कार्ड को काउंसलिंग के लिए यूज करते हैं, कार्ड को स्प्रेड करते हैं। आप करंट सिचुएशन एनालाइज करेंगे, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है या आपसे कोई तरीका मांग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे प्रोसीड करूं, वहां पे आप टैरो से गाइडेंस निकाल के देंगे। बिकॉज वी आर यूजिंग टैरो एज अ गाइडिंग टूल, तो हम कुछ भी क्लाइंट को अपने मन से नहीं बोलते, है ना। सो कार्ड आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से किसी भी सिनेरियो का आउटकम, किसी भी सिनेरियो का पास्ट, किसी भी सिनेरियो का फ्यूचर
आपको बहुत क्लैरिटी से बता देता है, प्रोवाइडेड आपके सारे मीनिंग्स जो है, बेसिक फंडामेंटल्स जो है आपके टैरो कार्ड के क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और वो हम फंडामेंटल्स कहाँ पे क्लियर करते हैं, हमारे पहले जो 4 मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर बेसिक फंडामेंटल्स हम कार्ड्स के क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ताकि आपको कुछ भी याद रखने में मुश्किल नहीं हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टैरो कार्ड। अब मैं आपके साथ थोड़ा स्क्रीन शेयर करती हूँ। पहला कार्ड हम में से काफी लोग आप जानते हैं, बिकॉज दिस हैज बिकम वेरी पॉपुलर नाउ। आप यूट्यूब, गूगल, हर जगह, इंस्टा पे आजकल टैरोट बहुत चल रहा है। सो ये पहला कार्ड जो है वो फूल का कार्ड है। ठीक है, अब ये फूल का कार्ड हमें बहुत लेवल पे बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। इसके अंदर कलर्स भी हमको दिख रहे हैं जिनका मतलब है, इसके अंदर हमको नंबर भी नजर आ रहा है, ऊपर आप देख पा रहे हैं नंबर है ना, तो इस नंबर का भी मतलब है। इसके नीचे जो नाम लिखा हुआ है द फूल, इसका भी मतलब है। जिस पहाड़ी पे खड़ा है इसका भी मतलब है, और ये जो डॉग इसको रोकने की कोशिश कर रहा है इसका भी मतलब है। एवरी सिंबल इन दिस कार्ड हैज अ मीनिंग, और ये आपको देखिए क्लाइंट की एनर्जी को फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। चूज, अगर अगर कोई मेरे पास XYZ क्लाइंट आया है और कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लेकर आया, मेरा बिजनेस कैसा रहेगा, या मेरा बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा है ना। ठीक है, यही लेते हैं क्वेश्चन कि मेरा बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा है। आप प्लीज मुझे बताइए कि गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरा काम जो है वो वर्स से बेटर हो जाए और फिर बेस्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपने क्लाइंट की एनर्जी फाइंड आउट करूंगी। ये तरीका होता है जब भी हम टैरो रीडिंग करने के लिए बैठते हैं। ठीक है, जब तक हम ये कार्ड, आई होप सबने देख लिया, मैं थोड़ा सा स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ सो दैट आई कैन सी द एंटायर स्क्रीन। जब तक हम अब यहाँ पे लॉजिकल चीज क्या बनती है कि मेरे को क्लाइंट का करंट सिनेरियो पता होना चाहिए। क्लाइंट ने तो मुझे बता दिया है कि मेरा काम नहीं चल रहा। ठीक है, अब मुझे रीजन मालूम होना चाहिए कि क्लाइंट का मेरे काम क्यों नहीं चल रहा। क्या वो प्रोक्रेस्टिनेटर है, क्या वो एक्शन नहीं ले रहा है, हो सकता है वो सिर्फ अपने थॉट्स में सोचता रहता हो, डे ड्रीमिंग करता है लेकिन एक्शन नहीं ले रहा। तो इसके लिए मुझे करंट सिचुएशन चाहिए, है ना। सो करंट सिचुएशन में देखूंगी, अगर यही कार्ड मेरा करंट सिचुएशन पर आता है, यानी कि अब ये कार्ड मुझे बता रहा है एक पॉसिबिलिटी तो आपके करियर के बढ़ने की बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब ये फूल कार्ड क्या है, अपनी मस्ती में चल रहा है। डॉग उसको रोकने की कोशिश कर रहा है और उसके आगे क्लिफ है, क्लिफ से वो नीचे भी गिर सकता है, लेकिन वो फिजिकल रेल में एंटर भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे बताता है कि पॉसिबिलिटी तो बहुत कुछ होने की है, लेकिन आपका ध्यान थोड़ा सा कम है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर देख के चल रहा है, आसमान की तरफ देख के चल रहा है। ठीक है, सपने भी बहुत हैं आपके, एस्पिरेशंस भी बहुत सारी हैं, क्योंकि उसने एक साख पकड़ा हुआ है। ध्यान दिया था आपने, उसने एक साख पकड़ा हुआ है। ठीक है, दोबारा शेयर कर रही हूँ, आप देखिए। अब इसने एक साख पकड़ा हुआ है, तो आप जो भी काम करते हो वो प्योरिटी से करते हो। व्हाइट कलर का फ्लावर इसके हाथ में है। आप सपने बहुत ज्यादा है अपने काम को लेके, आप राइज भी बहुत करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं केयरलेस मिस्टेक्स आप कर रहे हो, यानी कि ध्यान से आप देख नहीं रहे, है ना। अब मेरे को एनर्जी समझ में आ गई क्लाइंट की, क्लाइंट को भी समझ में आया, क्लाइंट कहेगा हाँ आप ठीक कह रहे हो, ऐसे ही है, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जहां पे मुझे लगता है कि मैं ही सही हूँ और मैं उनके ऊपर एक्ट करता हूँ, या हो सकता है कभी एक्ट भी नहीं करता। ठीक है, अब इसी कार्ड में से गाइडेंस निकल कर आती है। अगर इसी को मैं गाइडेंस के तौर पे भी लूं इस कार्ड को, तो यहाँ पे एक डॉग जो है इसको रोकने की कोशिश करे, कदम रोकने की कोशिश करे कि जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो वो डायरेक्शन अभी उसमें खतरा है, क्योंकि तुम देख नहीं रहे हो। ठीक है, वैसे खतरा नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम देख नहीं रहे हो तो यहाँ पे खतरा हो सकता है, कदम संभाल के रखो। सो हु इज दिस डॉग? दिस डॉग इज अ वेल विशर। हो सकता है मेरे एनवायरमेंट में कोई ऐसा इंसान है जो मुझे हर समय या तो गाइड करता है या गाइड करने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन फूल सुन नहीं रहा है।
आप ये पूछ सकते हो क्लाइंट को, आपका कोई मेंटोर है, आपको कोई ऐसा इंसान है आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में जो आपको गाइड करता है हर समय, एंड आई एम श्योर क्लाइंट आपको आगे से यस में ही जवाब देगा। ठीक है, सो यस आप है, लेकिन आप उसकी बात सुनते नहीं हो। यस, अब क्या करना है आपको, या तो उसकी बात सुननी है, समवन हु हैज मोर एक्सपर्टीज, समवन हु इज क्लोज टू यू, जिसपे आप विश्वास करते हो और जिसको दिखता है क्लियर। क्लियर देखना मतलब जिसका एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, आपको उनकी बात सुननी है। ठीक है, अब किसी ने कंपनी खोली है और ये मैं व्हाइट डॉग देख रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ इस कार्ड से, अब मैं उसको ये भी सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप अपनी कंपनी में कोई ऐसा इंसान हायर कीजिए जो आपसे उम्र में बड़ा है, जो आपसे एक्सपीरियंस में बड़ा है, जिसका तजुर्बा ज्यादा है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम आई विल गाइड हिम कि आपको क्या अपने लिए करेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत है। ठीक है, सो यहाँ इसी कार्ड से मैंने आपको इसको दो तरीके से रीड करना बताया। अब जरूरी नहीं ना कि ये कार्ड सिर्फ गाइडेंस में निकलेगा, यही कार्ड मेरा किसी की सिचुएशन फाइंड आउट करने में भी निकल सकता था, है ना, कि एक्चुअल इसके लाइफ के ब्लॉकेज है क्या, कहाँ ऑब्स्टेकल है, कहाँ प्रॉब्लम है। सो हम डिफरेंट लेवल पे कार्ड्स को पढ़ते हैं, डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, है ना। पर ये टैरो ने आंसर कैसे दिया, अब कोई और कार्ड भी निकल सकता था, यही कार्ड क्यों आया, है ना। अभी तो देखो हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं इन वेबिनार, वी डू नॉट हैव एक्चुअल क्वेश्चंस, लेकिन जो आपके क्लाइंट के लिए कार्ड निकलता है वही कार्ड क्यों निकलता है, या हम उसी कार्ड को क्यों इंटरप्रेट करते हैं, है ना। कार्ड्स आर नेवर रॉन्ग एंड समटाइम्स यू विल बी सरप्राइज्ड विद द काइंड ऑफ कार्ड्स दैट यू गेट। क्लाइंट के बिना सवाल किए ही कई बार आप उनको क्लाइंट को बता सकते हो कि आप ये सवाल लेके मेरे पास आए हो, आप क्लाइंट के बिना क्वेश्चन किए आप ये जज कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि क्लाइंट कहीं आपको टेस्ट करने के लिए तो नहीं आया। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ टैरो। क्यों है टैरो की ये पावर, क्योंकि एक ऐसा वंडरफुल टूल है जो एनर्जी के ऊपर काम करता है। नथिंग इज फिक्स्ड है, अभी जो आप एनर्जी लेकर आए हो टैरो मुझे वही एनर्जी दिखा रहा है ना। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि इफ इट इज नॉट फिक्स्ड तो फिर आउटकम कैसे फिक्स्ड है ना, जाहिर सा सवाल है। अगर ये एनर्जी फिक्स्ड नहीं है कि ऐसा ही होगा तो आउटकम कैसे फिक्स्ड है। सो आउटकम इज बेस्ड, इसीलिए इसको कहते हैं इट इज वेरी प्रैक्टिकल टूल, कि जिस एनर्जी में आप अभी चल रहे हो, जिस ढंग से आप काम कर रहे हो, उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी ये बनती है। वो पॉसिबिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव है जो तो वेल एंड गुड, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो, कंटिन्यू डूइंग इट द सेम वे। ठीक है, और अगर वो फ्यूचर हमें ठीक नहीं दिख रहा है, वो पॉसिबिलिटी पॉजिटिव नहीं आ रही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम कार्ड से गाइडेंस निकाल के देखेंगे। तो ये टूल हमने क्या सीखा, ये टूल है जो हमारी एनर्जी के ऊपर काम करता है। ठीक है, क्विक टूल है एज कंपेयर टू एनी अदर साइंस लाइक न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, इट इज अ क्विकर टूल। आप कार्ड्स निकालते हो एंड इफ यू आर वेल कनेक्टेड आप उसी समय पकड़ लोगे कार्ड्स को। ठीक है, कि कार्ड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेम कार्ड से आप किसी की प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हो, किसी को गाइडेंस दे सकते हो और रेमेडीज भी डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन रेमेडीज वाला जो पार्ट है वो हमारे मास्टर क्लास का पार्ट है। यहाँ पे हम प्रॉब्लम सिचुएशन को एनालाइज करना, आउटकम निकालना, बाकी सारे क्वेश्चंस किस तरह से आंसर किए जाते हैं हम वो सीखते हैं। ठीक है, सो आप ये कह सकते हो कि टैरो एग्जैक्टली एक उस जीपीएस की तरह है जो आपको आने वाले टाइम का पूरा रोड मैप दिखा देता है, कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, या किसी भी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, इवन योर स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, उस दिन हम प्रैक्टिकल क्लासेस एंड वी डू प्रैक्टिकल क्लासेस ऑल्सो। ठीक है, सबको हम एक एक मौका देते हैं कि आप रोल प्ले, वी द प्रैक्टिकल कंडक्ट करने का तरीका क्या है, रोल प्ले। तो एक जना रीडर बनता है और एक जना क्लाइंट बनता है, और आप अपने एक्चुअल क्वेश्चंस लेकर आते हो। तो उस तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज एज अ टैरो रीडर इज असेस्ड, आपका नॉलेज एंड द वे यू आर फ्रेमिंग योर क्वेश्चंस, और क्या आप उसको ठीक से इंटरप्रेट कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे। सो एवरी पॉसिबल थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड टैरो रीडर वो आपको सिखाया जाएगा, बीट जर्नलिंग और एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन विद योर टैरो कार्ड्स। राइट, एवरीथिंग फ्रॉम दिस कैच विल बी टॉट टू यू। सो ये एक अगेन जैसे मैंने बताया जीपीएस की तरह है, रोड मैप की तरह है, कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो ठीक भी है आपके लिए या नहीं है,
अगर नहीं है, टैरो ही आपको बताएगा कि अब उसको करेक्ट कैसे करना है। क्या मुझे रुकना है अभी यहाँ पे, या मुझे किसी और डायरेक्शन में एक्शन लेना। उस दिन मैं आपको बता रही थी, हम प्रैक्टिकल क्लास कंडक्ट कर रहे थे, एंड देयर वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आज तक प्रैक्टिकल में कभी किसी ने पूछा नहीं है। एंड इट वाज क्वेश्चन वाज कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, राइट, वेरी आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन। और वो हमारे यहाँ की क्लास में था, हमारे पीजी की क्लास में था। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड ट्रस्ट मी, टैरो वो भी बहुत ब्यूटीफुली आंसर करते हैं कि आपका एक्चुअल लाइफ का पर्पस क्या है, आर यू ऑन द राइट पाथ। ठीक है, अपने आप सबसे पहले तो अपने ऊपर कैसे काम करें। देखो, बिकॉज एवरीबडी वी हैव अ शैडो साइड ऑल्सो, हमारा एक अच्छा पार्ट है ना, जो हम दुनिया के आगे रखते हैं, और हमारा एक नेगेटिव साइड भी है, एंड एवरीबडी हैज इट, राइट। टैरो आपको आपके वो फियर्स, आपका वो शैडो साइड, उस पर वर्क कैसे करना है, कैसे काम करना है, सबसे पहले आप खुद को जानोगे ना। इसीलिए टैरो को सेल्फ हीलिंग टूल भी बोला जाता है, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग विद टैरो, जैसे जैसे आप कनेक्ट होते हो, आप देखना आपकी कितनी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स होंगी ना, जो ऑटोमेटिकली सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, योर पाथ, योर एंटायर पाथ, योर माइंडसेट, it changes. There is a positive shift in the energies the moment you get connected with the tarot. है ना, कुछ मिथ्स हैं टैरो को लेके कि टैरो इस समय नहीं करना चाहिए, उस समय नहीं करना चाहिए, टैरो जो है वो नेगेटिव एनर्जीज कैरी करता है। सो ये मिथ्स हैं, क्योंकि अब मुझे कितने साल हो गए टैरो करते हुए, एंड आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हाँ, कभी कभी आप ड्रेन्ड आउट फील जरूर करते हो, और उसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, जो मैंने मेडिटेशन चक्रास वाली क्लास में बोला। ठीक है, क्योंकि ड्रेन आउट फील होने का कारण ये नहीं है कि किसी की नेगेटिविटी आप पे आ गई, इसका सिंपल मतलब ये है, सबसे पहले तो लैक ऑफ नॉलेज। जब आप कार्ड को, आपको पता नहीं चलता ना आपके क्लाइंट को आपको बोलना क्या है, आप ड्रेन आउट हो जाते हो, आपका टैरो को नेक्स्ट टाइम हाथ लगाने का मन नहीं करेगा। सो देयर इज नो नेगेटिविटी इन्वॉल्व, राइट। तो आपके कॉन्सेप्ट्स पे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस किया जाएगा, और आपकी हर एक एस्पेक्ट विच इज इंपॉर्टेंट एज अ टैरो रीडर, टू बिकम अ गुड टैरो रीडर, इट विल बी डिस्कस्ड। ठीक है, अब मैं एक कार्ड और आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, अब इसको एक फूल्स जर्नी क्यों बोला जाता है। ठीक है, ये जब हमारा मेजर आर्क ना, यहाँ से हमारे कार्ड स्टार्ट होते हैं, इसको फूल्स जर्नी बोला जाता है। क्यों, क्या ये बेवकूफ है? अब लिटरल मीनिंग फूल का तो हुआ बेवकूफ, है ना, बट दिस इज नॉट फूल, दिस इज नॉट बेवकूफ वाला फूल, दिस मीन्स अ पर्सन हु इज वेरी वेरी इनोसेंट, वेरी इनोसेंट, जिसको जिंदगी का तजुर्बा ही नहीं है, जिसने अभी कुछ एक्सपीरियंस हासिल ही नहीं किया है। दिस इज द रीजन द नंबर ऑफ द कार्ड इज जीरो। जीरो क्या है अपने आप में, अब जीरो देखो कंप्लीशन का भी नंबर है, और वहीं से दोबारा बिगिनिंग भी होती है, इट्स अ सर्कल। ठीक है, वूम्ब की शेप है, ठीक है, एग की शेप है, लाइफ आती है, ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन जीरो हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। लेकिन वो पोटेंशियल में कब आएगा जीरो, अपने फुल फॉर्म में कब आएगा जीरो, फुल फॉर्म में तब आएगा जब उसको तजुर्बा होना शुरू होगा, जब उसको एक्सपीरियंस होना शुरू होगा। जैसे एक छोटे बच्चे को लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होता, बच्चे को नहीं पता कि मैं अगर सीढ़ियों के ऊपर चल रहा हूं या सीढ़ियों की तरफ जा रहा हूं तो मैं गिर भी सकता हूं। ठीक है, उसको कोई अट्रैक्टिव सी चीज नजर आई सीढ़ी के पास, वो दौड़ता चला जाएगा, क्रॉलिंग बेबीज, है ना। क्यों गिरते हैं हम, तो नहीं अभी गिरते, हम गिरते हैं बेड से, नहीं गिरते, बच्चे गिरते हैं। क्यों गिरते हैं, बिकॉज उन्होंने नया नया चलना सीखा है, उनको ये नहीं पता कि इसी चलने से हम गिर भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके फूल का रोल आता है, समवन हु इज वेरी इनोसेंट, समवन हु डज नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन पोटेंशियल बहुत है ना, बच्चे के पास अभी पूरी लाइफ पड़ी है बहुत कुछ सीखने के लिए। सो दिस इज फूल। अब फूल क्या है, जब फिजिकल रेल्म, अभी देखो ये वूम, हम ये स्टेज मानते हैं बिकॉज ये सोल कार्ड है, हमारा सोल की जर्नी का कार्ड है ना। सोल जब जर्नी करती है तो क्या करती है, वो फिजिकल रेल्म में आती है ना। तो यहां से छलांग मारना मतलब फिजिकल रेल्म में आना। अभी द सोल इज नॉट येट टेकन बर्थ। जब फिजिकल रेल्म में आती है, वो देखती है, वो बहुत सारे लोगों से ना चीजें सीखती जाती है। जैसे हमारे पहले पहले गुरु जो होते हैं हमारे पेरेंट्स होते हैं, है ना, वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। फिर जब हम थोड़े सर्टन लेवल पर हो जाते हैं तो हम स्कूल में जाते हैं, हम प्री स्कूल जाते हैं,
है ना। सो सिमिलरली टैरो भी एक जर्नी से निकलता है, हमारा फूल भी एक जर्नी से निकलता है, जहां पे वो अलग अलग लोगों से, अलग अलग मेंटोर से अलग अलग चीजें सीखता जाता है। पहला कार्ड मैजिशियन, नंबर 1 कार्ड। दो फूल इज द फर्स्ट कार्ड, लेकिन नंबर 1 किसका है, बिकॉज 0 से स्टार्ट होता है, सो नंबर 1 कार्ड आपका मैजिशियन हुआ। जब वो फिजिकल रेल में आता है, वो देखता है कि ये मैजिशियन क्या होता है, जादूगर, चीजें क्रिएट करता है आपके सामने, उसके सामने कुछ टूल्स पड़े होते हैं, उनसे चीजें क्रिएट करता है, जैसा चाहे वैसा क्रिएट करता है। सो मैजिशियन एक ऐसा इंसान है जो अपनी पावर से, मैजिशियन के पास एक पावर ही होती है ना जो हमारे पास नहीं है ना, चाहे वो आंखों का धोखा है, लेकिन है तो वो भी एक पावर ना, एक विद्या है, एक तरीका है, एक साइंस है। सो मैजिशियन के पास ये पावर है कि वो ऊपर से एनर्जी लेकर आता है। नाउ दिस इज अगेन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन ऑल्सो, एक हाथ ऊपर है, वो अपनी चीजों को ऊपर से नीचे तक लेकर आता है, ग्राउंड कर रहा है अपनी एनर्जीज को, एक हाथ नीचे पॉइंट आउट कर रहा है, सो इज ग्राउंडिंग दैट एनर्जी एंड ही हैज बिकम अ मीडियम, इन दोनों के बीच में खुद खड़ा हुआ है। ठीक है, ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि इसके सर के ऊपर इंफिनिटी का साइन देख रहे हो, खुद पे इसका विश्वास है, और साथ में मैनिफेस्ट करने की पावर है। सो यानी कि अगर खुद पे विश्वास हो तो आप कोई भी चीज को लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब ये कार्ड मेरा गाइडेंस पे आएगा, तो ये कार्ड हमें या हमारे क्लाइंट को क्या बताता है, गाइडेंस हम नॉर्मली तभी देते हैं जहां पे क्लाइंट स्टक हो रहा है, जहां पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, जहां पे उसको क्या आगे कदम लेना है नहीं समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये कार्ड आता है, तो ये कार्ड हमको बता रहा है कि यू हैव द पोटेंशियल, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अपने ऊपर विश्वास करके, आसपास की चीजें नहीं सुनो, अपने ऊपर विश्वास करके, अपनी ब्रिलियंस पे विश्वास करके, और ऑलमाइटी पे विश्वास करके, अपनी पूरी पूरी जो आपकी इंटरनल एनर्जीज है ना, उनको अलाइन करके आप चीजों को जैसे चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो। यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल विद यू, आपके टेबल पे सब कुछ मौजूद है। सो वट एवर इज रिक्वायर्ड राइट नाउ, यू हैव इट। आपने सिर्फ आगे बढ़ना है, अपने पे विश्वास रखना है, और ये मानना है दैट यू आर मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो इसी फेथ के साथ आपको काम करना है, और इस फेथ के साथ काम करोगे तो क्या मिलेगा, फ्लावर्स। इसके आसपास फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स क्या है, प्रोस्पेरिटी का सिंबल। अगर मैं ओवरऑल कलर देखूं कार्ड का, सो इट इज येलो कलर, विच इज अ वेरी ब्राइट कलर, एंड इट इज गिविंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। आप पहली नजर में, इवन इफ यू आर अ लेमैन, इवन इफ अगर आपको टैरो कार्ड के मतलब नहीं मालूम, आई एम श्योर रेशम, what energies do you feel when you look at the magician card? Are you feeling sad, or are you feeling very hopeful, hopeless or hopeful? होपफुल, राइट। सो किसी को नहीं भी पता, वो कार्ड के रंगों को देख के, कार्ड की ओवरऑल एनर्जी को देख के काफी कुछ बता सकता है। ठीक है, सो ये एक ऐसा टूल है जो आपके सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होता है ना, सबकॉन्शियस के साथ। धूप देख के, जब आप सर्दियों की धूप में होते हो, जब आप सर्दियों में होते हो और 1 महीने तक धूप नहीं दिखती है, फॉग दिख रही होती है ना, इमेजिन आप सारे के सारे फॉग में बैठे हो, आपने 1 महीने से धूप नहीं देखी है, और कल धूप निकलेगी तो सबका रिएक्शन क्या होगा, कोई है जो उदास होगा, नहीं होगा ना, एवरीबडी। सो दिस इज व्हाट, आप सबका कलेक्टिव जो एक कॉन्शियसनेस है टुवर्ड्स समथिंग इज सेम। ठीक है, देयर इज समथिंग इन योर सबकॉन्शियस ऑल्सो विच मेक्स यू हैप्पी। तो टैरो उस लेवल पे आपके साथ इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं, और जब हम तरीका सीख जाएंगे कि और डीपली कैसे कनेक्ट होना है, फिर दे कैन डू मैजिक एंड यू ऑल कैन बिकम मैजिशियंस ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो ये सिर्फ दूसरों की गाइडेंस के लिए नहीं है। इनफैक्ट आई आई स्ट्रांगली बिलीव कि टैरो एक ऐसा टूल है जो हर घर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि रोज हमारी लाइफ में इतने सारे सवाल होते हैं, इतने सारे एक्शंस होते हैं जो हमें लेने होते हैं, इतने डिसीजंस होते हैं जो हमें लेने होते हैं, लेकिन हम किससे पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछेंगे, अपने फैमिली मेंबर से पूछें, जो अपनी लिमिटेड नॉलेज से या अपने एक्सपीरियंस से हमें गाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप XYZ हॉस्पिटल के बारे में किसी से पूछोगे, अगर तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा है उस हॉस्पिटल को लेके, तो वो अच्छा बोलेगा। अगर किसी का एक्सपीरियंस खराब है उस हॉस्पिटल को लेके, वो इतनी बुराई करेगा कि आप डर जाओगे, है ना। सो व्हाट इफ यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टूल जो किसी मीडिएटर में बिलीव ही नहीं करता, इट्स यू एंड योर कनेक्शन विद द डिवाइन, दैट इज टैरो।
ठीक है, तो आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप कोई इसको प्रोफेशनली नहीं भी करना चाहता, इट इज अ ब्यूटिफुल टूल कि आपके घर पे होना चाहिए, बिकॉज इट गाइड्स यू वेरी वेल। ये आपको आपकी एनर्जीज को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, आपकी लाइफ सिचुएशन में इंप्रूव करने को हेल्प करता है। और दूसरा, जिसने प्रोफेशनली करना है उसके लिए तो बहुत अच्छा है ना, स्पेशली फॉर लेडीज जो जिनको लगता है कि अभी उनको दोबारा से अपना करियर स्टार्ट करना है ना, मे बी दे वर ऑन sabbatical और ड्यू टू XYZ रीजन व्हिच हैपेंस विद मोस्ट ऑफ अस, है ना। आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मैं अच्छे कॉर्पोरेट में थी, बट देन ड्यू टू सम रीजंस आई हैड टू क्विट। ठीक है, उसके बाद टैरो एक्चुअली आप सबको बता रही हूँ, अगर आप यहाँ पे वेबिनार में आए हो और अगर आप इसको आगे फर्दर लेके जाओगे ना, सो फील ब्लेस्ड दैट टैरो हैज चोजन यू। क्योंकि आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने कितनी बार कोई वेबिनार अटेंड किया होगा या पहले से कभी सोच रहे होगे, लेकिन आपको आज मौका मिला। सो इट इज द राइट टाइम, द राइट थिंग विल एंटर योर लाइफ, राइट एनर्जीज विल एंटर योर लाइफ। एंड इट हैपेंड विद मी। ये कॉलिंग थी, लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं इसको प्रोफेशनल ले सकती, एंड वो सडनली मेरे साथ हुआ। एंड देयर इज नो स्पेसिफिक डे कि आज मैंने करना शुरू किया, वो धीरे 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 मैं कब इसमें बहुत ज्यादा प्रोफेशनली आगे मुझे नहीं पता चला। ठीक है, सो इट इज अ कॉलिंग, इट इज द राइट टाइम एंड द राइट एनर्जीज विल एंटर इनटू योर लाइफ। ठीक है, और जिसने प्रोफेशनली करना है, डेफिनेटली इट इज अ गुड, यू कैन जनरेट अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि यहाँ पे हम वैसे भी आपको बहुत सारी मोडालिटी सिखा रहे हैं। हम आपको क्रिस्टल्स भी सिखा रहे हैं, हम आपको पेंडुलम भी सिखा रहे हैं, हम आपको चक्रा मेडिटेशन ये सब भी सिखा रहे हैं। सो डेफिनेटली आपके पास एक ना एक पूरा पैकेज रहेगा, नॉट जस्ट टू बी अ टैरो रीडर बट अदरवाइज ऑल्सो आप किसी को होलिस्टिकली किस तरह से गाइड कर सकेंगे, आप वो सीखेंगे। दूसरा, एक वैल्यू हमको चाहिए होती है ना, सबको चाहिए होती है इंपॉर्टेंस, है ना, हम सबको चाहिए होती है। फील गुड अगर कोई आके हमसे एक अच्छा सजेशन सीख करे और आपका कहा हुआ जब सच हो जाता है और सामने वाला आपको 10 लोगों के बीच में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना। मे बी यू आर हेल्पिंग आउट योर हस्बैंड। मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने बोला कि पहले हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते थे, अब जब मैं उनको कहती हूँ वो वैसे ही होता है, वो कहते हैं अब रोज ऑफिस जाने से पहले वो बोलते हैं यार मेरे लिए तू कार्ड निकाल दे प्लीज, है ना। सो दिस इज हाउ योर सेल्फ वर्थ ऑल्सो इम्प्रूव्स, राइट। आदमियों के पास हमेशा होती है, और जब हम लोग फीमेल्स अपने पास घर में बैठे होते हैं अपना अच्छा खासा काम छोड़ के, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लो होता है। बट इट इज फॉर एवरीबडी, ईदर इट्स अ मेल और फीमेल। इट इज अ वेरी गुड एज अ साइड हसल ऑल्सो, एंड इट इज वेरी गुड ऑप्शन इवन इफ यू आर प्लानिंग टू टेक इट एज योर मेन स्ट्रीम वर्क। ठीक है, सो आई होप आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई इस कार्ड को लेके। अच्छा, एक एस्पेक्ट और बताऊं, मैजिशियन को लेके ही बता देते हैं, मैजिशियन का भी ऑब्स्टेकल बता देते हैं आपको, है ना। अभी हमने गाइडेंस पार्ट किया। अब हर एक कार्ड का प्रोज एंड कॉन्स है, हर एक कार्ड का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है। बेस्ट से बेस्ट कार्ड आप उठा लो, उसका भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट होगा। डिपेंड करता है कि मेरे को मेरी रीडिंग में उसका नेगेटिव एस्पेक्ट पढ़ना है या पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़ना है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब यही मैजिशियन जो है ना, ये ट्रिक्स्टर भी हो सकता है, क्योंकि मैजिशियन क्या है, ट्रिक्स करता है ना, है ना। तो ये ट्रिक्स्टर भी हो सकता है, लेकिन मेरी रीडिंग में अब मुझको इसको क्या बोलना है, क्या एक्चुअली उसका मैजिशियन की पावर है, यानी अपने लिए कुछ भी क्रिएट कर सकता है, या वो एक ट्रिक्स्टर है, झूठा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो ये हम टेक्निक में सीखेंगे। लेकिन अगर यही कार्ड हमारा ऑब्स्टेकल में आ गया, प्रॉब्लम में आ गया, हर्डल में आ गया कि मेरे लाइफ का प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा, यानी कि आप आपके पास मौजूद तो हर चीज है, लेकिन आपका बिलीव सिस्टम जो है वो शेकन अप है, इट इज वीक, वेरी वेरी वीक। ना आप अपने पे विश्वास रखते हो, ना आप अपने अपने पास मौजूदा जो चीजें हैं ना आप उन पे विश्वास रखते हो। ठीक है, सेल्फ जो आपकी जो विल पावर है ना कहीं दैट इज अंडर क्वेश्चन। और कहीं ना कहीं आप आपका जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है चीजों को लेके वो बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्स्टेकल पार्ट और गाइडेंस मैंने इसको पहला बताया, है ना, पहले करवा दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। हम बहुत सारे लेवल पे कार्ड्स को रीड कर सकते हैं, कार्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसी से, अब ये हमने एक एग्जांपल लिया किसी के प्रोफेशन का, सिमिलरली हम एग्जांपल ले सकते हैं किसी के रिलेशनशिप का, है ना। हम सिमिलर एग्जांपल ले सकते हैं, विद सिमिलर कार्ड्स हम क्वेश्चन उठा सकते हैं किसी की स्पिरिचुअल जर्नी का,
है ना? सो ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, कोई भी ऐसा अभी तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं जो मुझे लगता है कि हम टैरो के थ्रू आंसर नहीं कर सकते। दे आर मोस्टली ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आप टैरो से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल ओपन दिस सेशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। हाँ जी, रिवर्स भी होते हैं, लेकिन रिवर्स का जो एस्पेक्ट है ये हम मास्टर्स में जाके सीखते हैं। ठीक है, हमने प्रोग्राम को डिवाइड किया हुआ है पीजी में एंड मास्टर्स में। ठीक है, अब मास्टर्स में हम क्या करते हैं, मास्टर्स में और एडवांस लेवल पे काम करते हैं। जैसे हम इन डेप्थ सिंबोलॉजी पे काम करेंगे, इन डेप्थ हम कलर्स पे काम करेंगे, कलर स्कीम्स जो टैरो की हैं उन पे काम करेंगे। न्यूमरोलॉजी के साथ एसोसिएशन ऑफ कार्ड्स क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी के साथ एसोसिएशन क्या होता है, रेमेडीज जिसको हम कहते हैं ना, उपाय वाली जो रेमेडीज हैं वो क्या होती हैं, ये सारी हम मास्टर्स में सीखते हैं। ठीक है, विद सम अदर लाइक मून मैजिक एंड ऑयल, वो सारे मास्टर्स का कंटेंट है। तो जैसे आपने बोला रिवर्स सीखते हैं, यस रिवर्स हम सीखते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर दूंगी, लेकिन इसकी जो रिवर्सल की जो टेक्निक्स है, 2-3 टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम रिवर्सल पढ़ते हैं, वो हम मास्टर्स में सीखते हैं। ठीक है, सो if you have any questions you can all please raise your zoom hands. हाँ जी, विनिद्रा। You can unmute. मैम सो मुझे पूछना था कि इतने साल के एक्सपीरियंस में अभी तक आपने कभी ऐसे कोई सेक्सुअल अब्यूज केसेस एनकाउंटर किए हैं? एंड फॉर देम टैरो के थ्रू गाइडेंस देना कैसा आप हैंडल करते हो? बहुत आते हैं, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, बिकॉज जब देखो अभी मैंने इसको एक बड़े अम्ब्रेला में डाल दिया, रिलेशनशिप क्वेश्चंस। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप क्वेश्चन ओनली। ठीक है, एंड देयर आर वेज एंड टेक्निक्स टू हैंडल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे आपको ना किसी का सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है उसको अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत होती है, पर्सनालिटी एनालाइज करने की बहुत जरूरत होती है। इफ दिस इज द बिहेवियर, व्हाई इज इट लाइक दैट, व्हाट इज इट विच इज गोइंग इन दिस सबकॉन्शियस माइंड। सामने इंसान कह तो कुछ रहा है, कॉन्शियसली कह तो कुछ रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस में कुछ और ही तो नहीं चल रहा है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कनेक्ट ऑल्सो। तो यस, टैरो के थ्रू यू कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। एंड आज तक ऐसे हुआ है लाइक आपके सामने मुझसे बोलते हैं यार ये तो ब्लैक मैजिक करती है, नहीं तो बिकॉज लाइक एक एक मेरे के साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ था जहाँ मेरी मॉम को आके उनकी कलीग की बेटी ने, अरे हाँ मैंने तो सुना आपकी बेटी टैरो करती है, उसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं ना, ऐसा करके। सो आई थिंक ये बहुत एक बड़ा मिसकंसेप्शन आजकल ये फैल गया है कि टैरो मतलब बोलते हैं या काला काला जादू करते हैं। मैंने काला जादू करना तो हम यहाँ नहीं रहते, हम बहुत अमीर होते हैं। हाँ, आई लॉस्ट योर वॉइस इन बिटवीन, लेकिन मेरे को समझ आ गया। काला जादू, हाँ देखो मिथ्स हैं टैरो को लेके, और वहां पे देखो अभी इट इज लाइक 50-50। बहुत सारे लोग हैं जिनका नॉलेज टैरो को लेके थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है ना, उनको पता चलने लग गया है कि टैरो एक्चुअली है क्या। लेकिन जो लोग अभी भी नहीं जानते हैं, पीपल हु आर इग्नोरेंट, ओनली दोज आर द पीपल जो इसको ब्लैक मैजिक से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बिकॉज पीपल आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्यों ऐसे हो रही है, बिकॉज जब आप यूट्यूब उठाओगे, जब आप इंस्टा उठाओगे, देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल जस्ट टू गेन सर्टन व्यूज, वो हर तरह के वीडियोस डाल रहे हैं, हम्म। है ना। वो कार्ड्स को ऐसे डाल रहे हैं, तो मे बी अब उन्होंने कार्ड को एक्सप्लेन भी ऐसे किया जैसे आप, बिकॉज यू आर इनटू टैरो तो आप अंडरस्टैंड करोगे हमारा जब डेविल का कार्ड आता है तो इट्स अ सबसे ज्यादा स्टेम्पलेट मिस कार्ड इंटरप्रेटेड है। जिसको सारे ब्लैक मैजिक बोलेंगे, बट इट इज नॉट लाइक दैट। रिवर्स का मतलब अलग हुआ, कॉम्बिनेशन में अलग हो जाता है, क्लाइंट के हिसाब से अलग हो जाता है। नहीं, देन इट इज नॉट जस्ट ब्लैक मैजिक ना। अभी जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल लेवल पर होना है ना, आपके इंटरनल लेवल पे भी तो बहुत सारी चीजें हो रही है ना, आपकी इंटरनल नेगेटिविटी भी तो बहुत वो पावरफुल होती है ना। सो इट कुड बी चक्रा भी दैट तो ऑल्सो, ब्लॉक हो सकता है। एब्सोल्युटली, है ना। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा सवाल लेके आपके पास आए ना, यू शुड एक्चुअली डायरेक्टली स्पीक टू दैट पर्सन, काउंसिल, बताओ उसको दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। क्योंकि देखो आप टैरो नहीं करवाते होगे, आप किसी और के पास जाते होगे, करेक्ट। है ना। सो बेसिकली टूल्स वही है, मतलब है चीज वही है, आप तरीके अलग अलग चूज करते हो, है ना। और टैरो इज द मोस्ट प्रैक्टिकल टूल, दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ। अभी भी समटाइम्स आई गेट वेरी अमेज्ड, जब जिस कभी कभी जो रीडिंग्स आती है ना, या अभी भी इट विल सरप्राइज मी समटाइम्स। लाइक एक्सपेक्ट नहीं करते हम लोग, अरे ये कार्ड तो एक्सपेक्ट ही नहीं करता, ये कहाँ से आ गया करते हैं। कार्ड्स का भी होता है, और इनफैक्ट आप
देखो आप क्या होता है, आप लोगों को फेस वैल्यू पे जानते हो, हु आर शोइंग, जैसे अभी मैंने बोला, इंसान आपको सिर्फ अपना बेस्ट दिखाता है, करेक्ट। आपको ये नहीं पता कि अंदर की स्टोरी क्या है। टैरो आपको वो बता देते हैं। और जब वो लोग जो अभी तक आपके सामने कुछ और बन रहे थे, जब आप उनके काउंसलिंग करने बैठो, कंसल्टेशन करने बैठो, एंड व्हेन दे ओपन अप, तो आपको लगता है अरे यार देखो, अभी तक तो हम एक मिथ में जी रहे थे ना, कि उनको सिर्फ हम फेस वैल्यू पे देख रहे थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी हस्बैंड वाइफ को देख रहे हो, अरे ये तो बहुत बेस्ट कपल है, बेस्ट कपल है, बेस्ट कपल है ना। सो समटाइम्स वाइफ विल कम एंड से कि आई फील वेरी केज्ड even if my husband is very good, है ना। सो दे आर डिफरेंट लेवल ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो। सो वो चीज बहुत अच्छे से आपको टैरो से पता चलती है, बहुत अच्छे से सेंस होती है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है मैम, वेबसाइट पे पढ़ा था कि पीएचडी का एक क्राइटेरिया है 5 years एक्सपीरियंस। तो मेरे पास तो 3 ही साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पीजी करना ही पड़ेगा ना यहाँ से। मास्टर्स, पीजी के बाद फिर आपको मास्टर्स करना है, एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी। पीएचडी, ओके। एंड पीएचडी भी 1 साल का ही है। 1.5 years। डिनर आराम से खाया था ना विनिद्रा? जल्दी जल्दी में तो नहीं खत्म किया? नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी में ही खत्म किया। मेरी मॉम भी एक्चुअली रुकी थी, तो इसलिए मैंने परमिशन ले लिया था आपसे। ओके ओके, ठीक है, फाइन। हाँ जी रेशम। Are you able to unmute yourself now? Yes, can you hear me? Yeah. Thank you so much for all the guidance, ma'am. So I'm pretty new to this. So I was given an understanding that if you're a graduate, you can straight away join the PG diploma course. You can skip the diploma part. So I can start with the PG diploma if I want to join. Your admin will be able to guide you better on this. Okay. Okay, yeah, because I think I'd spoken, so they said this only. This class will happen on what days and what will be the timings? Yes, we will, towards the end of the session, I will, definitely let you know about the timings also. Timing, see, it will be in the night, the same time, 9 p.m. This is how we kept our class timings Okay. till now, right? Because all the batches are running in the night time, so that everybody is free by then, even if you are working somewhere in office. So by 9 o'clock, everybody is free and they get time to attend the live session. Otherwise, we also give recordings. So most probably it will be 9 p.m. and it will be on one day will be Friday. Mhm. Another day will be Sunday morning. Sunday Right? morning. Sunday morning, yeah. Because Sunday is a weekend. So weekdays are night, 9 Okay. p.m. and Sundays could be the morning time. So I'll confirm it to you. I'll confirm it to you. So we have not decided on the days as yet. Okay. And the class will usually be for how long? From 9 o'clock till? 1.5 hour class every day. 1.5 We hour. have, yeah, we have theory plus question and answers. Okay. So this class will also run for 1.5 hour duration. Do you have more to cover or we are done with the So it's classes just for a now? webinar. So it's a webinar. So today it is done. Okay. Okay. Thank you. Meera. Okay. No more questions? Where is Meera? Okay, I think she got dropped. No, she's here. Yeah, Meera, are you there? No, I've sent you a request to unmute yourself. Now you can unmute yourself. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, you are. Well, I don't know exactly because I'm very much new to this tarot because I have been practicing astrology for some time now. Okay. But one day, what happened, this deck kind of attracted me. So it's like it chose me or something like that. Does it really work out like that? Yes, absolutely. I'm in a Absolutely. mess, so you'll have to excuse me. Sorry, your voice is little unclear. I said my face is a bit messy, so you'll have to excuse me on that. No, you're looking very pretty. Not at all. I'm looking like shit.
Sorry. No problem, no problem. Yes, Meera, it could be your calling. Definitely, you can go ahead with this, and you will definitely see, certain things. You will find out in a very quicker manner. So even if you have a knowledge of additional modality, it is going to help you only. It's not really helping because I chose this card and it came out as the hangman. So can you just Don't be shower stuck. some Yes, light on that? hangman is like, don't be stuck. Take further actions now. Maybe How? see this I'm is actually the looking for my sole purpose. sorry. I'm actually looking for my sole purpose. So sole purpose is to gain more insights into spiritual connections also. Your high priest, your hangman card is a card of spiritual journey as well. It is telling you to move forward from your stuck situations. You need to do something little extra. You need to push yourself forward. So should I pursue it or not? Yes, yes, definitely. See, now here one thing is very important. How are you framing your questions? What exactly was your question with tarot? Right? Was it whether you were taking out a question as a yes or no, or you were thinking about understanding the situation? What if you get into tarot? Right? So All it right. is very important. So I don't know how did you frame your question, but yes, Hangman says that you will have to make some extra effort. You'll have to push forward your limits a bit so that you move ahead from whatever is stuck, and from just from the earthly desires to a little spiritual journey as well. Yes, I'm a bit spiritual person as well. I'm not gonna lie on that. So maybe you need to, maybe you need to work in a more systematic way. Do you follow certain practices? I do, yes. Yeah. So tarot is a way of connecting to those spiritual connections also. Is it somehow related to being a healer? I'm not, but I have a close friend who says he's a healer, studying some Akashic and all those kind of reading and stuff. So is it somewhat related to this tarot reading also? Kashik is a different modality. It is not related to tarot. It isn't. All right. So if it is my calling, I should pursue it. Is that what you're suggesting me? Absolutely, yes. Yes. Well, I cannot study two things at once. So once one of them is finished, because I've already enrolled in one of the classes. So let it finish first and then I should be able Whatever to. ways, whatever ways you feel comfortable, you can do that. But yes, if you have framed your question around that, whether you should go and what should be your next course of action, then it is Hangman is telling you to, yes, go ahead, take new steps and come out of your comfort zone. All right. I'm going to do that exactly like this. Let's see what happens. What's in store for me? Thank you. Absolutely, Meera. All the best to you. Thank you. Yes. Who else? Vinitra, do you have more questions? Yeah. So actually, I didn't ask more because I wanted others to, ask. Like, otherwise it will be like, I'm the only one who's asking my questions. So I was told that after PhD we'll get placements, but I actually already have clients. So like, but what type of placements does Maharishi University help with? We have placements with an application called Bodhi. Yeah. Yes, So ma'am. we place. And Yes. Let me share few things on the placements. See, after PhD, the like students are invited for the placement drive from top-notch companies like the Astro Yogi, Astro Talk, and the like Bodhi Technologies, and also few more in the market. And Okay. the like interview is conducted by those like company HR as per their schedule, and you can connect with them as per their policy and norms, ma'am. Right? all right, understood. Thank you so much. Thank you. And one last question is, I am planning to enroll for two courses, so the timings will not clash, right, Utresh sir? Ma'am, don't You worry. You can connect with your relationship manager Yeah. once, and they shall guide you properly. Right? Okay. I'll Okay. just try and connect with her once. Maybe she was busy today, so I thought I'll ask you. Fine, ma'am. Fine. No issues, ma'am. You can connect tomorrow after 10 a.m. You will be Mhm. guided by the staff, ma'am. Right? Okay, not an issue. Thank you. Thank you.
Any more questions? Anyone? Yeah, Resham, please go ahead. So I wanted to ask that, when you do tarot, are there any do's and don'ts, like you should not eat non-veg and No. basically See, that? having non-veg, see, food preferences are something I leave up to a person. And you actually cannot force anybody to, follow a certain food habit. If you are on your spiritual journey, so it is not linked with it, because tarot works at your, there are three main legs, I would say, of tarot. That is your intuition, definitely, your theory, and your practice, right? If it would have been only the intuition ways, right, then yes, because it is very important to have a spiritual element in you to connect with your intuition, I would have said yes, it is important. But with tarot, it is not important, because see, it is adopted by Western culture also. It has come from Western culture only, right? They take non-veg every day. But yes, if your purpose, life purpose is different, if your goal is spiritual, then it will, will definitely interfere. And is it linked with NLP in any way? NLP, the techniques are different, but yes, it also works on your subconscious only. When we follow the way, the tarot's way is to follow its guidance. Because I have done NLP, so probably doing tarot will enhance the NLP Absolutely, yes. flow as well. Anybody who has done psychology, anybody who has done NLP or any other modality, it will help you to relate to those modalities in a better manner. Okay. Okay. Thank you. Welcome. Yes, Dr. Vikas. Wait. So you are on mute. You can unmute yourself now. Ji. I want to know that, ma'am, to pursue my PhD, first I have to diploma, then after the master, and then we have to take the Yes. admission in the PhD. That Yes, is the sir. procedure. Na? Yes, sir. And I want to complete my PhD in the Vastu Shastra. I am already having the PhD in the mathematics. So what is the preference of mine? क्या प्रेफरेंस होना चाहिए मैम कि मुझे एस्ट्रो लेना चाहिए या फिर टेरो या फिर क्या चूज करूं मैं डिप्लोमा के लिए? सर देखिए, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं. एज यू नो, इट इज लाइक डिफिकल्ट मेरे लिए आपको बताना. मेरे को तो फिर रीडिंग करनी पड़ेगी आपके टैरो कार्ड. मैं तो उसके हाँ, तो इसीलिए मैंने बीच है में ना? चैट भी आपको किया था, कैन यू रीड माय टेरो? और आज ये कोइंसिडेंस है, जैसे कि आप बता रहे हैं वो सेम सिचुएशंस है, अराइज हुई है. तो इट इज बाय द कॉल बाय द यूनिवर्स टू जॉइन दिस क्लास. Otherwise, I miss many classes and I want to pursue my courses like this, that preference. Very nice. So this is the also by the calling by the universe, we are connected that today. Yeah. So sir, here I would suggest कि आप पहले ना आप करके देखिए, है ना, क्योंकि Yes, आप ऑलरेडी वास्तु कर रहे हैं, आप टैरो में भी आके देखिए, फिर देखिए कि आपको क्या चीज ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है. आई थिंक दैट विल बी बेटर, बिकॉज मोर प्रैक्टिकल डिसीजंस. आपकी जब अंडरस्टैंडिंग होगी ना आपको किसी चीज के बारे में, तो आप अपने लिए बेहतर डिसाइड कर पाएंगे. yes, ma'am. Okay. Okay. So who will be tell me exactly what I choose in diploma? Yes, sir. Dr. Vikas, I would like to support you on this particular query. See, you can like go for tarot reading or astrology or the like other courses in our college, because already you are a doctorate in the like mathematics. So I believe Yes, sir. like the Vedic astrology and the like KP astrology will be very easy for you to understand the patterns and the like combinations of planets, because you would be able to understand our like what is the permutation and the combination of the planetary positions, right? So you can like go for astrology, and also you can go for tarot reading, because tarot reading is more of the like learning of energy and then giving the predict like based on the card and the like particular question. So you can like do both the things simultaneously, right? That is possible. And I think ma'am is like having the like students on the PhD in the tarot reading, where
the student is like connecting the Vastu Shastra with tarot or the astrology with tarot, where they find the like proper like solution to a particular problem, where you can support the society in a very big scale, I could say. Because your like education background is like much appreciated, and we welcome you to Sri Maharshi College to pursue the Vedic like courses here, sir. Right. Thank And you. also Thank you can share your certifications of the occult sciences where you have pursued, and you can like get the guidance from the like college office. And Okay, sir. yes. Thank you. Thank you very much, sir. जी ये Thank you. यस वेरी गुड इंसाइट बाय प्रिंसिपल सर कि जब आप दो साइंस को सीख जाएंगे, अगर आप एस्ट्रो एंड टारो को सीख जाते हैं, सो मे बी वी कैन सेलेक्ट अ टॉपिक इन योर पीएचडी लाइक दैट, जहाँ पे आप कॉम्बिनेशन पे काम करें दोनों के। Yes, ma'am. जी जी। So, I have one more question. Can you read any card for me today? Sir, no time is not allowing. It's already Okay, 10. okay, okay. Yeah. But I Okay. would love to maybe next session, whenever we plan, maybe we can keep a live tarot reading session wherein we can Okay, give ma'am. guidance to you all, because this session was not planned that way, Okay, ma'am. Okay. Thank you. right? Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank Mona Shah. Okay, ma'am. Even I am interested to do PhD in tarot. So PhD में भी lectures ऐसे होते हैं, मतलब नहीं, पीएचडी में लेक्चर्स नहीं होते, लेकिन पीएचडी में अदरवाइज हमारी वन ऑन वन डिस्कशंस काफी सारी होती हैं डिसाइड करने के लिए कि अब हम कैसे आगे फॉरवर्ड जाएं, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, और हमारा कंटेंट टॉपिक जो है वो कैसा चूज करना है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन वन टू वन रिलेटेड टू दैट। बट क्योंकि ये रिसर्च है ना, तो इसमें हम क्लासेस नहीं हो सकती हैं, बिकॉज इट्स योर पर्सनल रिसर्च। कोई ऐसी चीज क्लासेस तो उसके होंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो हम आपको सिखा रहे हैं। सो पीएचडी इज समथिंग आप चीजों के साथ रिलेट करके कनेक्ट करके अपना एक रिसर्च लेकर आएंगे, सो इट विल बी एब्सोल्युटली न्यू, तो इसलिए उसकी कोई क्लासेस नहीं होती। no problem. I would like to join this tarot class. So when it is going to start? We will get back to you, ma'am. We will get back to you. We will inform you. Okay, fine. Thank you. Okay. So would you like to add something to it, sir? Yes, the like classes will be like updated in the same group, and also one student have asked in the chat box like what is the fee structure. So let me like inform that the postgraduate diploma in the tarot reading is like 12,000 rupees in one time of like payment, which includes the like study materials provided by the college, and also ma'am would provide the extra notes based on the like expertise in the tarot reading. And every student will be getting the recorded sessions. Maybe like due to some reasons, the student like sometimes might miss the class. So for better learning practices, we provide the recorded sessions till the duration of the particular course. You will have the recorded sessions, and the duration of this course is 1 year, where the syllabus will be covered for 4 months, and then you can like revise the syllabus with the recordings and with the study materials. Also, you can ask the doubt in the college application to professor, and also the assignments are also provided for better like knowledge. And of course, I would like to say that your involvement should be more in the learning practices, where the faculty is like connected with all the students at the regular intervals. And if there is any question, kindly like ask me. I'll do the needful. Meera wants to know one more question. Yes, Meera. Ma'am, can you see me? Yeah. Batao, Meera. Yes, I can hear you. Ma'am, yourself in mode. Am I audible? Yes, Yeah. you are. All right. So, sir and ma'am, both of you. Since I'm a practicing astrologer, there was no question of spiritual or at the same time energies. But when it comes to tarot, I have felt it myself. There are
exchange of energies. So does it really work? The exchange of energies, cards choosing you, you're getting pulled by the cards or your deck. Yes, Sometimes yes. crystals. Yes, yes, definitely. This is how I started my conversation. That if you are here today, there could be a purpose, right? Because आप में से कितने लोग पहले से सोच रहे होंगे, लेकिन अभी आपको मौका मिला। आप 2 साल कई बार सोचते ही रह जाते हैं, 2 साल के बाद ज्वाइन करते हैं, है ना? तो वो कब, जब एनर्जी आपको, आपका राइट टाइम होता है, तब आप एक्चुअली इन चीज में आते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपका कोई अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन अभी सडनली हो रहा है, डेफिनेटली देयर इज अ कॉलिंग फॉर दैट। और सेम क्रिस्टल्स के साथ भी होता है, बिकॉज सी दीज थिंग्स आर एनर्जी बेस्ड थिंग्स, right? When you are prepared for it, you will automatically feel that attraction or pull from all these things. I have touched this crystal myself and I saw it's vibrating. I felt it vibrating. And I have seen you're wearing a green adventure or maybe a rose quartz or quartz maybe. So crystals, I don't know exactly how are they related and why they are pulling towards me. It's like something even blowing my own mind. See, I'm this at is the a loss, power of actually. crystals, because crystals are designed in such a way, they have a power of receiving some information and then also reflecting that to the person or in the energy, right? So if you are number one, if you're feeling that vibration, that means you are sensitive towards energy. So already your spiritual journey has started, right? Yes. Like you said, right? Yeah, yeah. And you are into certain practices also. If you can sense that vibration, if you can feel that vibration, that means you are already there. And then crystals will work in a better manner for you, because you already are getting pulled towards these energy based things, right? And then the power of crystal, the designing of the crystal, because it comes directly from the mother earth, right? So it is designed in a way that it has the power of storability. That means it store whatever information that you give to your crystal, and then it will reflect it in your environment. So this is how, you know, stones and crystals work. It's fascinating, interesting, as well as magical. They are magical. They are magical. Yes, certainly they are. Well, personally, because I'm a Bengali, and when I speak this kind of things, people have a way of assuming that I'm into dark magic. The other time when somebody was saying this, I could actually relate to it, you know. Yeah, I'm into dark magic, and because I'm a Bengali, they trust me very easily. Yes, I'm into dark and black magic and all that, which isn't true at all. And see, But it has just nothing to do with, you know, a person's state or you know, the caste and the culture. It has nothing to do with it. I think, though there are many people who are already getting enlightened about it, but you know, as I said, as I told to Vinidra also, there are still a lot of people who need to have a little open mindset, and open mindset they will only see if they have more practical readers like you, right? yes. So Yes. we need to break that barrier so that society also does not have, see, initially तो ladies को occult करना ही allowed नहीं था. There was an era जहाँ पे ladies को occult practices करवाई ही नहीं जाती थी. पूजा पाठ से भी दूर रखा जाता था, है ना? अब उसके अपने कुछ कुछ reasons है कि क्यों होता है, spiritual में एक अपना reason है. तो वो कुछ कारण थे, है ना? और ऐसे ही लेडीज को विचेस कंसिडर किया जाता था, राइट? बट विद द मॉडर्नाइजेशन मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड, है ना? अभी तो आप देखो कि काम करना भी कहाँ अलाउ होता था, नहीं, अब वो काम के लिए कुछ नहीं बोल पाते, है ना? सो अब ये एक थोड़ा सा एक एरिया रह गया प्रैक्टिसेस में, जहां पे अभी नेग्लिजेंस अभी है थोड़ा सा, है ना? एक illiteracy, I would say, the open mindset is still missing. तो अभी इसके बारे में बोलते हैं. Slowly, I think slowly and gradually it will also change, because now I see a lot of transformation happening in people. Lot many people coming to these modalities. उनका भी जब कोई रिश्तेदार आएगा या मे बी अपना कोई क्लोज उनका बोलेगा कि हम भी टैरो रीडर करना चाहते हैं, तो माइंड खुल जाएगा उनका. Right, till that time we can we can be on a practical path. Yeah, till that time we can be on a practical path, share good information with people. That's it. I'm definitely looking forward to it. Great, most welcome. Thank you, Right. ma'am. Yes, Rishabh.
Now you'll be able to unmute yourself. Yeah. So I just want to say one thing, ma'am, that what you've been talking about, the vibrational pull, I hardly attend any classes. I enroll for many, but this one I attended, and I must say I've connected so beautifully with you and with your vibrations. And I would love to enroll. Just that I want you to consider not to keep it on Sunday morning, because I also teach. So I have Okay. classes to teach on Saturdays and Sunday mornings. So any day in the evening is fine with me, but I would love to enroll and be in your class. So just a request. Thank you so much, Reshamji. Definitely will try to consider that, and the timings will be informed very soon in the group. Sure. Thank you so much. Thank you. Yes, Manitra. Okay. Yeah. Yeah, so regarding the PhD, how many research papers are we supposed to publish? Like we are supposed to make our own hypothesis. Do we have the freedom for that? Yes, we have entire format. You have to work on synopsis, you have to work on thesis, you also have to work on case studies. And then once your the entire thing is complete, then you can proceed with your publications. So you will get So- handholding there also. You will get guidance related to that. Maybe Principal Sir can help more on the publication part. So And the citation method is Chicago, and so the research paper will include bibliographies and citations also, right? Certainly, ma'am. We have a team where you can get the guidance on the paper publication with international journals and also the national journals, right? And few of our tarot reading, like PhD scholars have already, like published their papers, and you can Google it once. And yes, we also support on the copyright like application as well, where you get the full protection for your PhD thesis, for your PhD topic with your PhD thesis in the government office of India. And also the certification is also provided from the government of India. Okay. And one last question, sir, it will be let's say if I want to publish my own tarot deck, also you can help me with the copyright for that, or that is something I'll have to look into myself. Yes, ma'am, it is possible. We have the certain norms and procedures to be followed for the product actually. So we can Okay. give you guidance on that. And also, professor is also there to give you guidance on the professional basis, where you can have the proper design with the proper message in that particular deck. And also you can now you can go for the copyright of that particular deck as well. That is also Correct. possible. So there are many things included in this, where through the Department of Tarot, and the professor is head of the department, through her guidance, you can definitely do wonderful things with your interest. Right. Correct. Because to be honest, I already have the visuals for my oracle card ready, but I don't know about the publication or the legal aspect and the copyrights. So I was hoping that, if I enroll, if I qualify for the PhD, then I'll be getting guidance from your institute. So I just wanted to clear that up. Right, ma'am. Certainly we do, ma'am. All right. Thank you so much. Thank you. any more questions? बाकी सबके cameras off हैं. अभी clear हुआ, all clear हुआ. आप लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं पूछ रहे है ना. So I'm really clueless कि session कैसा गया, but I hope that you all like this session. Very And- nice session, ma'am. It was right from the grassroots level, you have taught what is tarot and how to use tarot in providing the guidance to the general society with the insights about the research perspective as well. So we welcome all the students to join this particular batch and get the insights about tarot reading. And also you can do wonderful activities with the tarot and with your education and background, because we have the professionals from different education background pursuing tarot and also using it for our daily life events to get a better solution for our daily routine. And also on the important events like marriage is there, and switching over the job or the company is there,
and financial matters are there, relationship, like questions are there. So there are many things, like lined up. And of course, a professor will give you practice as well to be a better consultant, where you can improve your skills on the problem solving and also giving the guidance to the general society. Right. Thank you, ma'am. Thank you so much for your time and your like patience for answering all the questions. So we shall keep you posted on the like upcoming batch with day order and the timing as well. And you can connect with your relationship manager or the student coordinator for more details on the fee structure and the syllabus. Right. Thank you. Thank you so much. Sir. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you.